Hello students, my name is Nitish Chandra and I am lecturer in James Polytechnic College in Science and Humanity Department. I am taking your Applied Mathematics class which have subject code 1615301. This is unit number 1 and the chapter name is Definite Integral Part 5. This is lecture number 23. In this lecture, I am going to teach you about properties of definite integral. So, properties of definite integrals. Of integrals. Okay, in this we will first discuss about the properties. What is the properties? And secondly, we will solve the questions, different questions on the properties. Okay, so property number 1. Okay, integration of fx dx, limit is 0 to a, then is equal to 0 to a, we can write it as a minus x dx. Okay. So this we will going to use the property. Okay. So we will see one by one the questions. One by one we will see the question. Question number 1. Question number 1 is integration 0 pi by 2 cos 5x upon cos 5x plus sin 5x, sin to the power 5x dx. So this is the question. Now we will see how to solve the question. So the solution is like integration of 0 pi by 2 cos 5x upon cos 5x plus sin 5x dx I equal to, इसलिए I equal to, we can write it as a use property like integration 0 to a fx dx equal to 0 a minus x dx. Okay. So I am going to use this property in this equation. Okay. So the I will become as 0 to pi by 2 cos 5 to the power 5 pi by 2 x dx. A is here A is pi by 2 upon cos to the power 5 pi by 2 minus x plus sin 5 to the power 5 pi by 2 minus x, okay, dx. So I will become as integration of 0 to pi by 2, the cos pi by 2 minus cos 19 minus x will be sin 5x upon sin 5 to the power 5x plus cos
5x dx, ये सेकेंड नंबर इक्वेशन एंड दिस विल बी फर्स्ट नंबर इक्वेशन, इक्वेशन 1. Okay, so now we will solve. Now adding question 1 and 2, we will have 2i is equal to integration 0 to pi by 2 cos 5x upon cos 5x plus sin 5x dx plus integration of 0 pi by 2 sin 5x upon cos 5x plus sin 5x dx. ठीक है, अब दोनों को जब ऐड करेंगे हैं तो क्या आएगा, सिंपल सा बन जाएगा 0 to pi by 2 cos 5x plus sin 5x upon cos 5x upon plus sin 5x dx. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx. सो फाइनल आंसर विल बी 2i इक्वल टू x प्लस c, इसीलिए i इक्वल टू पाई बाई 2 0 डिफरेंट यूज डिफरेंट इंटीग्रल. सो चलिए i इक्वल टू 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ 0. ठीक है, तो फाइनल i विल बी बिकम ऐसे, i विल बिकम पाई बाई 4. ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, नाउ वी विल सी सम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x dx. Limit is a to 0 to a. Okay. So we will solve the question. Solution. So same here, we will solve it as use property to integration of 0 to a fx dx equal to integration of 0 to a f a minus x dx. So in equation 1, ठीक है, this is equation 1, this is equation 1 will be here. Equation I equal to 0 to a root under x upon root x plus root a minus x dx. This is equation number 1. तो इसमें अगर प्रॉपर्टी 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I will become as 0 to a root under a minus x upon root a minus x plus root upon
a माइनस ठीक है डी एक्स, इसीलिए आई विल बिकम एज ए रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस root x. That one is second equation. Okay, now adding equation 1 and equation 2. So I will become 2i equal to 0 to a root x upon root x plus root a minus x dx plus 0 to a root a minus x upon root a minus x plus root x dx. Okay, so finally the equation will become as 2i equal to 0 to a root x plus root a minus x upon root x plus root a minus x dx. Okay, so upper they will cancel, so I will become 2i equal to 0 to a dx. So 2i will become as x a by 0. Finally I is a by 2. Okay, this will be the ठीक है, तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है. तो नाउ वी विल सी some question on infinite if limit is varying from 0 to infinite. So question number 3 is question number 3. Okay, question number 3 is 0 to infinite x upon 1 plus x into 1 plus x square dx. So how we will solve this question? Let's see. Let solution will be like this. If let I equal to 0 to infinity x upon 1 plus x into 1 plus x square dx. This is equation number 1. Okay, putting first we will solve it as a putting x equal to tan y. इसलिए देखिए dx will be sec square y dy. Okay, if now change the limit, change the limit, so upper limit will become upper limit क्या हो जाएगा? If x equal to 0 then tan of y equal to 0, इसीलिए y will be 0. ओके, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? सॉरी, दिस वन इज लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अपर लिमिट. दिस विल बी लोअर लिमिट, दिस वन विल बी अपर लिमिट. अपर लिमिट, ठीक है. तो क्या हो? इफ
x equal to infinite, then tan infinity will be tan y equal to infinity, y equal to infinity, इसीलिए y will be पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पर tan क्या होता है, पाई बाई 2 पर tan इन्फिनिटी होता है। कैसे ग्राफ बनेगा इसका? ओके, सो नाउ लिमिट भी चेंज हो गया, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सो नाउ न्यू इंटीग्रेशन विल बिकम, integration of limit will be 0 to pi by 2 and tan of tan y into sec square y upon 1 plus tan y into 1 plus tan square y। ये हम लोग कर क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमको उस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर वाई क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। इसीलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 tan। अब मैं बता रहा हूँ क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए tan y dy, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, देखिए जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो डिनोमिनेटर सपोज दैट x अपॉन x प्लस वाई रहेगा, तभी हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हम लोग ये प्रॉपर्टीज है उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, एक में कॉस है तो नीचे अगर न्यूमरेटर कॉस है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉस प्लस साइन। अगर न्यूमरेटर रूट एक्स है तो डिनोमिनेटर रूट एक्स प्लस, यानी कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में होना जरूरी है, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों मैच नहीं कर रहे थे। देखिए अगर एक्स है तो यहाँ एक्स रहता तो हो जाता, और यहाँ एडिशन भी है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जंबल कराए, तो हमने क्या किया, tan y मान लिया, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या फंक्शन बन गया, 1 प्लस tan y अपॉन 1 प्लस tan y। तो यहाँ tan y है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग कब और क्यों यूज करते हैं, आई विल बिकम लाइक दिस वन, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब फिर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। कैसे, साइन वाई अपॉन कॉस वाई अपॉन 1 प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई। इसीलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन वाई अपॉन साइन वाई प्लस कॉस वाई डी वाई। अब क्वेश्चन समझ दिख रहा है ना, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फाइनली इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो आई को नाउ यूज प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू 0 a f a माइनस एक्स dx। तो ये यूज करेंगे इसमें इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो आई विल बिकम 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2
माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ 5/2 माइनस वाई प्लस कॉस 5/2 minus y dy. I will become as 5/2 cos y upon cos y plus sin y dy. I will become as, अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग, ये इक्वेशन 3 हो गया, add equation 2 and 3 and 3 we have ठीक है। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन y अपॉन साइन y प्लस कॉस y प्लस dx प्लस 0 से π/2 cos y अपॉन साइन y प्लस cos y dy, यहाँ dy होगा, ठीक है। तो2i इक्वल टू, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन y प्लस कॉस y, इसी तरह नीचे भी साइन y प्लस कॉस y, ओके, dy। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो 2i इक्वल टू y dy 0 से π/2। तो 2i इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया, y π/2 0। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y, ठीक है। तो 2i इक्वल टू y का क्या है, y इज क्या माने थे, 10 y आया, तो tan इनवर्स ऑफ x, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर π/2 माइनस 0, ठीक है, इसीलिए i इक्वल टू π/, ठीक है, आंसर, ये आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, कब हमको ये जो प्रॉपर्टी है कब यूज करनी है, ठीक है। तब हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ a to c fx dx इक्वल टू a to b, ये ब्रेक होने लगेगा, fx dx प्लस b to c fx dx, ओके। ये प्रॉपर्टी कब लगेगा, जब हमारा फंक्शन कहीं कंटिन्यू कर रहा है, सपोज दैट ऐसे है, ठीक है, कोई फंक्शन है, कोई हमारा फंक्शन है, ओके। तो ए लिमिट हो गया,
बी लिमिट और सी लिमिट। ठीक है, अगर यहाँ कोई स्टार पेज रहता है, सपोज दैट इस तरह से आ रहा है आंसर, ठीक है, तो ए टू बी, ए बी सी, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये पूरा एफ एक्स है, एफ एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या डिफाइंड हो रहा है, सिर्फ लिमिट, लिमिट, ये लिमिट, ठीक है, ये एफ ए हो जाएगा, ये एफ बी हो गया और ये एफ सी हो गया, ठीक है। तो ये ए टू बी लिमिट है और बी टू सी, लेकिन पूरा फंक्शन कहाँ है, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, ओके। तो हम लोग को ब्रेक कैसे करना है ये हम लोग को अब देखेंगे, ये प्रॉपर्टी कब लगेगा और कैसे लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन से। वी विल सी वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये अच्छा है, इसमें मॉड वाला क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादातर सॉल्व करते हैं। वी विल सॉल्व द मॉड क्वेश्चन मोर देन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, इफ लिमिट क्या दिया हुआ है, -1 to x 0, if 0 x 1, ओके, 0 इज नॉट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, इफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1 लिमिट पर है, तो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज ए -1 to 0, फंक्शन विल बी -2x dx प्लस, अब क्या कंटिन्यू करा, 0 से 1, 0 से 1 अगर फंक्शन है तो क्या है, फंक्शन विल बी 2x dx। तो अगर हमारा फंक्शन ब्रेक करके देता है, अगर हमारा फंक्शन ब्रेक होके हो रहा है, तो हमारा इस तरह से बनता है, ओके। तो अब आसान हो गया सॉल्व करना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1 से 0, प्लस ये कहाँ क्या होगा, x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 1, ठीक है, y, इसलिए y इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -1 प्लस, ये क्या हो गया, सॉरी, इसका लिमिट कैसे पुट करेंगे, देखिए ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, अपर लिमिट 0, तो अपर लिमिट सबसे पहले पुट करेंगे, 0 माइनस 0, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट -1 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर अब इसके लिए आ गए, तो अपर लिमिट क्या हो गया, 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन बन गया, इसलिए y विल बिकम एज, ये क्या हो गया, -1 और -1, 2 हो गया,
फिर इसको +2, तो क्या हो गया y इक्वल टू 4। तो ये हमारा इस तरह से ये कैसे यूज करते हैं समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आंसर है। सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2। अब मॉड का क्वेश्चन आ गया, मॉड। सो इवैल्यूएट मॉड जहां पर भी दिखा तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कोशिश कीजिएगा ये प्रॉपर्टी लगाने की। डेफिनेटली मॉड जहां पर भी दिखेगा कोशिश करना है कि हमें प्रॉपर्टी, यूज प्रॉपर्टी। तो लेट सॉल्यूशन, let I equal to -1 to 2 x क्यू माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स को हम लोग वी कैन राइट इट एज ए एक्स क्यू माइनस एक्स if x lie between 0 to 1, ओके, 0 to 1, एंड माइनस कब होगा, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स if x lie between 0 to -1। ये -1 है, ठीक है, और ठीक है, तो 1 लाई बिटवीन 1। ठीक है, अब एक थर्ड है एक्स क्यू माइनस एक्स इफ x lie between 1 to 2, 1 to 2, so x q minus x will become as x q minus x if -1 x lie between 0 x माइनस एक्स क्यू माइनस ये हो जाएगा इक्वल टू 0 x 1 एंड एक्स क्यू माइनस एक्स if x lie between 1 and 2, ओके। सो इंटीग्रेशन I will become as, लिमिट पुट कर दो 0 to 1, क्या है एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 x माइनस एक्स क्यू डी एक्स प्लस 1 to 2 एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। इसलिए I will become as x4 माइनस अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लाई कर रहा है -1 और 0 के बीच में, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x4 बाई 4 लाई कर रहा है 1 और 0 के बीच में, प्लस x4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसीलिए I इक्वल टू 0 माइनस 0, ये वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, 1 पुट माइनस करेंगे तो प्लस फिर अपर लिमिट प्लस फिर अपर लिमिट 1 बाई यानी कि 2 स्क्वायर 2 to the 4,
ठीक है, ये 4 माइनस 2, ये अपर लिमिट 1 to 2 है, माइनस 1/4 माइनस 1/2। ओके, इसीलिए आई इक्वल टू, ये जब सॉल्व करेंगे इसको तो 11/4। ओके आंसर। ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्व। समझ गए ये? तो ये कैलकुलेशन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, क्वेश्चन नंबर, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज 0 π/2 साइन x माइनस कॉस x dx। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, तो साइन x माइनस कॉस x, तो ये कब, ये हमारा होगा मॉड है, मॉड हटेगा, मॉड हटेगा तो ये कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें यही चीज़ देखना रहता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि माइनस ऑफ ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर माइनस लेते हैं तो ये कब होगा? इफ एक्स 0 x π/4। ठीक है, साइन x माइनस कॉस x इफ x लाई बिटवीन π/4 टू x लाई बिटवीन π/4 टू π/2। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है अब इंटीग्रेशन में। लिमिट हमें पता चल गया, तो आई विल बिकम एज 0 π/4 कॉस x माइनस साइन x हो जाएगा dx, प्लस π/4 टू π/2 देन साइन x माइनस कॉस x dx। ठीक है, तो आई विल बिकम एज साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया π/4 0। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, π/4 टू π/2। अब लिमिट पुट करेंगे तो अब वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू कैसे पुट करना है? पहले अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, फिर अपर लिमिट प्लस 1/√2 माइनस ये 0 प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1/√2 माइनस ऑफ 1/√2। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2√2 माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व करने में मानने। तो दोनों प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, आगे और भी जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। So we will see some more examples from different integral in next class. Okay.